ना आई स्टार्टेड यस बोलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे नहीं तो So are you all excited for the first time in the history of Cape Town a poet recitation? Absolutely fanatical about Hindi music and Hindi movies, and I love watching them. मुश्किलें खुद ही आसान करेंगे, कुछ मुश्किलें खुद ही आसान करेंगे, तब जाके दूसरों के मेहनत को सम्मान देंगे। Good morning guys, this is Devi. Welcome to my channel Roaming Devi. Today I am at a location where first time poetry recitation ceremony is going to happen in Cape Town, and it is specifically for the Indian community who are really having a great enthusiasm related to the poetry and also how to recite on the stage. So this is a very big thing in India. So this is first time Indian community is planning to do a poetry recitation in Cape Town. So I'm going to take you. So this video is mostly towards the viewers of Indian community. So I'm trying to put the English meaning of those points in the video. So if you have an interest who are not from India, who don't understand Hindi especially, so they can follow those captions and actually to understand the meaning of the poem. Okay. So let me go there. The people are waiting for me, and then I'll show you what is their arrangement and how. The first time the poetry recitation in Cape Town is going to happen. Okay, I'm really excited to showcase that and also to be part of that. The program. She is Bhavna Bhushan. Namaste. She is the person who is organizing the first time poetry recitation in Cape Town. Sorry, not in South Africa. In Cape Town, I believe. Cape Town, yes. And this is a great initiative for the people who are really enthusiastic about poems and especially the Hindi poetry world. Actually, although I'm not into that world, but still I'm very excited being an Indian community. So I wanted to, showcase the beauty of this program which is going to happen. So Bhavna, welcome to my channel. Thank you. And first of all, thank you very much for inviting me. Thank you. And thank you very much for arranging such a beautiful thing in Cape Town. That is poetry recitation. Thank you so much. And we give the name as Kavita Sammelan, Kavi Sammelan. Sorry. Yes, Kavi Kavi Sammelan. So Kavi means in Hindi it's the word Kavi, which means poetry, and Poet. Poet. Yeah, Poet. yeah. Okay, she's the right. I think Bhavna, you should tell what exactly No. Kavi. So Bhavna, can you tell about your Kavi Sammelan? What exactly the concept is all about? Yeah. बस हम यहाँ भारत में हैं, भारत में नहीं है, Just भारत sorry to से बहुत interrupt दूर you. है। Sorry to interrupt you. Bhavna is going to speak in Hindi because she wanted to tell it from her heart. So people who are not from Indian community, don't worry. Just go through the caption of my video. You can switch on the caption. You can understand what she's trying to say. And the Hindi viewers from India or wherever in the world, please give a thumbs up to Bhavna who has started a great initiative. Bhavna, the camera is yours now. थैंक यू। सो हम आज यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं हिंदी कवि सम्मेलन। तो हिंदी भाषा को बीच में सेंटर पे रख के हम लोग ये सम्मेलन स्टार्ट किए हैं, और बस हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और जो लिखते हैं, जो चुपचाप लिख के अपने पास रखे हुए हैं, वो हम लोग सब एक ग्रुप बना लें और अपना एक ग्रुप बना के हम लोग ये कवि सम्मेलन करते रहें, ताकि हम लोग को अपना एक इन्जॉयमेंट हो जाएगा। बस यही है हमारा मेन मोटिव कवि सम्मेलन का, इंडिया से दूर अपना एक छोटा सा इंडिया। Thank you very much. Thank you very much. So let's go inside to the place where the Kavi Sammelan has been organized. So I'm going to. Hello. Hello everybody. Namaste. This is the first time all of you have joined this, poet recitation, right? So you all are welcome to this, and Bhavna ji, who has organized this, thank you very much already for that. I've already given that. So are you all excited for the first time in the history of Cape Town a poet recitation? You can see the excitation now. So let's start. Stand for the national anthem of India. भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। Welcome to Cape Town's first Kavi Sammelan, a mesmerizing gathering of poetic souls where the art of words comes to life. We witness laughter, tears and profound moments of connection as the poets bask in the appreciation of their craft. कविता एक लेखक का स्वरूप है, कविता एक लेखक का अस्तित्व है, कविता एक लेखक का चरित्र है, कविता एक लेखक की छवि है, कविता एक लेखक की वाणी है। It is in this shared experience that the power of poetry shines, transcending boundaries of language and culture, reminding us of our common humanity. In this enchanting event, we delve into the rich tapestry of Indian poetry, celebrating the beauty, depth and rhythm of the spoken word. Inspired by the ancient traditions of Kavi Sammelan, this gathering brings together talented poets from diverse backgrounds, each weaving their unique verses into a magnificent poetic symphony. As the gentle breeze carries the aroma of Cape Town's vibrant culture, the stage is set for a captivating journey through emotions, experiences and thoughts. Poets, both seasoned and emerging, grace the mic, their voices resonating with passion and eloquence. May I please request Bhavna Bhushan, one of the poets, to please do the opening of this Kavi Sammelan. Thank you. संस्कृति में सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है कुछ भी अच्छा करने से पहले। सबको नमस्ते, थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करो मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। थैंक यू सबको आने के लिए। और अब सरस्वती माता, उनको तो बिना याद किए रहा नहीं जा सकता। तो वीणा पुंजित रंजित हस्ते भगवत भारती देवी नमस्ते। ज्ञान का प्रकाश बनाए रखना, ज्ञान का प्रकाश बनाए रखना, अभिमान को दूर हटाए रखना। ज्ञान का प्रकाश बनाए रखना, अभिमान को दूर हटाए रखना। दोनों हाथों से बांट सकूं, दोनों हाथों से बांट सकूं, ऐसी विद्या देती रहना, ऐसी विद्या देती रहना। थैंक यू। और अब आपको कवि सम्मेलन में ज़्यादातर लोग कविता क्यों लिखे हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादातर अचानक से हमारे दिमाग में लाइन्स आती है। वो ऐसा कुछ है नहीं कि आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ और आप लिखते चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली वो ऐसे होता है कि आपके दिमाग में लाइन्स घूमती रहती हैं और अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसको देख के आपको वो याद आ जाता है। जैसे अचानक शाम के समय आप बैठे हुए हो, सुबह खत्म हो गई, दोपहर खत्म हो गई, शाम है और अब रात होने वाली है। तो जैसे ऐसे हो जाता है कि रात और दिन के बीच की रेखा शाम। तो ऐसे नेचुरली लाइन्स आते हैं। तो क्योंकि मैं वाइफ हूँ, पत्नी हूँ, तो ज़्यादातर मतलब पति पत्नी के संबंधों पर मैं लिखती हूँ वो मैं लिखती रहती हूँ। तो पहला कविता तो वही होगा मेरा। तो उस पर है, सब अपने रास्ते लग जाएंगे, सब अपने रास्ते लग जाएंगे, अंत तक बस हम दोनों ही रह जाएंगे। आई थिंक अगर सब लोग अंत तक बस हम दोनों ही रह जाएंगे रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग सब वही है, कोई पत्नी है कोई पति है, जिनके नहीं है वो अपने आने वाले के लिए कर सकते हैं। सो आप लोग बोलना मेरे साथ, सब अपने रास्ते लग जाएंगे,
सब अपने रास्ते लग जाएंगे, अंत तक बस हम दोनों ही रह जाएंगे। बच्चे होंगे फिर वो भी बढ़ जाएंगे, अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, अंत तक परिवार होगा, रिश्तेदार होगा, कभी जो था खूब मेल मिलाप वो भी दूर हो जाएंगे, अंत तक कुछ जिम्मेदारियों में बढ़ जाएगा, कोई नाराजगी से हट जाएगा। होता है ना, कोई जिम्मेदारी में अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाता है, कोई हमसे नाराज होकर हट जाता है, बट दैट्स फाइन। तो कोई जिम्मेदारियों में बढ़ जाएगा, कोई नाराजगी से हट जाएगा, अंत तक जीवन के हर चरण में, जीवन के हर चरण में बस हम दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाएंगे, अंत तक अंत तक थैंक यू। तो हम विदेश में आपसे रिलेट भी कर पाए। थैंक यू। वाह वाह। तो सब बोलते हैं जैसे अरे ये तो विदेश में रहती है, विदेशी कल्चर होगा, बच्चे भी होंगे, ऐसे सब लोग ऐसे ही होंगे, पर ऐसा नहीं है। हम अपने कंट्री से दूर है पर भारत हमेशा हमारे दिल में है। तो उस पर भी हम लिखे हैं, हमने अपना जहां बसा लिया है, हमने अपना जहां बसा लिया है, विदेश में है तो क्या, एक छोटा सा भारत, एक छोटा सा भारत हमने यहाँ भी बना लिया। ठीक है, और आप जितना लोगों के बारे में गॉसिपिंग, गलत बात बोलते हो, निगेटिव बात बोलते हो, तो वो भी आप में आता है, आपको पता नहीं चलता पर वो ग्रेजुअली आ जाता है। तो वो मुझे फील हुआ है, तो मैं उस पर भी कुछ लिखी हूँ कि औरों की खामियों पर बात करते हो, औरों की खामियों पर बात करते हो, न जाने कब वो खामियां तुम्हारे अंदर आ जाए, न जाने कब वो खामियां तुम्हारे अंदर आ जाए। अगर करते दूसरों की बड़ाई, अगर करते दूसरों की बड़ाई, क्या पता वो अच्छी बातें तुम्हारे अंदर भी समाई। तो जैसे खुशी और दुख, like sadness and happiness. So I am telling you in English that happiness will find you. Happiness will find you and happiness will come. And sadness, you have to reach the sadness. Oh, electricity is off. Oh, I didn't do that work. So sadness will come. So उस पे मैंने भी लिखा है, खुशियाँ अक्सर बेवजह होती हैं, खुशियाँ अक्सर बेवजह होती हैं, वजह तो लोग अपने दुखों का ढूंढते हैं, वजह तो लोग अपने दुखों का ढूंढते हैं। अब जैसे एक दिन मैं शिमला में, बहुत ऊंचा सीढ़ी था, तो मैं शिमला की सीढ़ी चढ़ रही थी, तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरे दिमाग में फिर एक और आया, तो वो क्या था, चढ़ती हुई सीढ़ियाँ। जब आप चढ़ते हो तो चढ़ती हुई सीढ़ियाँ न जाने कितना कुछ सिखाती हैं, मेहनत लगती है कुछ भी पाने में। आप एक एक स्टेप लेते हो ना, हाथ दम भी फूलता है, चढ़ते जाते हो, तो चढ़ती हुई सीढ़ियाँ न जाने कितना कुछ सिखाती हैं, मेहनत लगती है कुछ भी पाने में, मेहनत लगती है कुछ भी पाने में। किसी के दिल तक पहुंचना आसान नहीं होता, हर सीढ़ी पर संभल कर चलना पर आसान सी लगती है, उतनी ही आसान जितना किसी के मन से निकलना। अब जैसे बच्चों के लिए हम लोग बहुत आसान अपने बच्चों का लाइफ कर दिए, सब कुछ दे देते हैं, उनको उसका वैल्यू नहीं हो रहा है। तो उस पर भी है कि थोड़ा सा परेशान उन्हें भी होने दो, थोड़ा सा परेशान उन्हें भी होने दो, खुद की जंग खुद ही लड़ने दो, कुछ मुश्किलें खुद ही आसान करेंगे, कुछ मुश्किलें खुद ही आसान करेंगे, तब जाके दूसरों के मेहनत को सम्मान देंगे। सोशल मीडिया के जमाने की है ये बात, यहाँ पैसों से मदद मिल जाएगी जनाब, यहाँ पैसों से मदद मिल जाएगी। आप पैसे के लिए बोलोगे कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई ना कोई आपको हेल्प जरूर कर देगा, इवन विद 100 रुपीज बट हेल्प कर देगा। तो वो है, कोई यहाँ पैसों से मदद मिल जाएगी जनाब, पर दिल से प्यार निकलने से पहले, लाइक शेयर सब्सक्राइब, पर दिल से प्यार निकलने से पहले जलन होती है बेहिसाब। तो अभी जैसे नॉर्मली हम लोग मिलते हैं, मतलब
लोग हस्बैंड वाइफ है, आप लोग परिवार में रहते हो, सुबह की चाय बनाते हो, शाम की चाय बनाते हो, पीते हो, बैठते हो। सुबह की चाय नॉर्मली बहुत हड़बड़ी वाली होती है, नींद तोड़ना होता है, ऑफिस जाना है, काम करना है, तो सुबह का चाय हड़बड़ी होता है। शाम का चाय थोड़ा सा फुर्सत वाला होता है। तो ऐसे ही सब बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए, तो हुआ कि चाय बनाओ, डेली बनाते हैं तो चाय बनाओ। उन्होंने कहा, उस पर मैंने बनाया कि उन्होंने कहा शाम की चाय, उन्होंने कहा शाम का वक्त है, एक प्याली चाय हो जाए। क्या बात? मैंने भी जवाब दिया, मैंने भी जवाब दिया, आज आपके हाथों की हो जाए। कोई भी है कि उन्होंने बनाया या नहीं बनाया। बहुत ही डीप गहराई And बहुत गहराई वाली बातें लिखती हूँ, very deep thoughts that I have, you know, which I depict through my poetry. In the Hindu tradition we say, you know, when we start something, we take the blessings of our elders and then we start that. Today I want to start with a poem that I wrote for my grandmother, who was my best friend. She passed away in February 2010, and on her first death anniversary I wrote this poem. It's very deep. She was my best friend, we were roommates for a very, very long time. So her death is something that has taught me to be self-dependent or independent, I would say, and to always value others, to respect others. So I'll start. साया क्यों तुम्हारा आज मिट सा गया है, नन्ही सी थी मैं जब तुमने मुझे संवारा, पलकों में अपनी जब तुमने मुझको बसाया, साथ मेरे थी हर पल तुम, बस गुमसा हुआ कहीं वो साया, न जाने कब बिरसर हुआ तुम्हारा वो साथ, न जाने कब बिरसर हुआ तुम्हारा वो साथ, न जाने कब हमसर हुआ तुम्हारा वो प्यार, नन्ही नन्ही इन आँखों में आंसू आज भी आते हैं, जब एक याद से दिल पाक पाक होता है, जब एक प्यार से दिल सिसक सिसक रोता है, तुम्हारी दोस्ती थी एक सराया, तुम्हारी गोदी थी एक हमसाया, तुम्हारे आंचल में मैं छुप छुप जाती थी, तुम्हारे आंचल में मैं छुप छुप जाती थी, तुम्हारे आंचल में मैं बस बस जाती थी, हिम्मत नहीं अब मुझ में अकेले चलने की, साथ तुम्हारा जब से मैंने गवाया, रूठी हुई मुझसे तुमने मुझको मनाया, गमों की लहरों से तुमने मुझको बचाया, क्यों आज ये आंसू थमते नहीं, क्यों आज ये अपने बस में नहीं, जब से तुम गई हो हर पल याद आती हो, याद आते हैं वो लम्हे वो रातें, जब कहानियों की पोटलियाँ तुम खोलती थी, नन्ही सी एक परी के जैसे सवार के तुम रखती थी, क्यों ये सब आज थम सा गया है, क्यों ये सब आज गुम सा गया है, साया क्यों तुम्हारा आज उठ सा गया है, साया क्यों तुम्हारा आज उठ सा गया है। हर कोई कविता लिख सकता है, लेकिन हर कोई एक अच्छी कविता नहीं लिख सकता। There's a difference. Anyone can write a poem, but it is not so easy to write a good poem. I was traveling with a few friends. इन पंछियों के पंख कब कट जाए नहीं पता, कितनी ऊंची उड़ान ये भर ले नहीं पता, उड़ान भरो लेकिन अपनी ज़मीन से परिचित रहो, सिर्फ आसमान से ही सब नहीं, सिर्फ ऊंचाइयाँ ही सब नहीं, ज़मीन पर कदम रखोगे तो थम जाओगे, आसमान में उड़ तो लोगे लेकिन फिर भी एक दिन ज़मीन पर ही आओगे। पूजा शर्मा, आज फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर प्रीफिक्स लगा रही हूँ बहुत सालों के बाद। So I have done my PhD when I was in India in 2013 and I was into academics. I was the assistant professor in commerce in India. लेकिन जब यहाँ पे आई तो I was on dependent visa for few years and then I was looking after my kids and into family planning. And then I didn't get any teaching job, so I thought, okay, let me start something else. And now I'm into gaming industry as a communication executive. So I am into content specialist. So content writing है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिखती थी, लेकिन अच्छा पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है. Lockdown, because then you get really ample time, and lockdown was a period that really, gives you
so many situations that you started thinking about yourself and all around, कि जो तुम सोचते हो सिर्फ वही चीज़ें नहीं है, उससे बहुत बड़ी है, बियॉन्ड चीज़ें हैं, घर, पैसा, फैमिली, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा हो के भी आप किसी की लाइफ नहीं बचा पा रहे थे। और हम लोग सब इंडिया से इतने दूर थे, एंड आवर फैमिलीज इन इंडिया, आवर पेरेंट्स वर इन इंडिया, और हम लोग ये सोच रहे थे जो वो सिक हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, वी आर नॉट इवन एबल टू गो विद देम। और मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी कि आज मेरे बच्चों का कैसा चाइल्डहुड है, दे आर नॉट इवन गोइंग टू प्ले आउटसाइड, क्योंकि जा नहीं सकते थे। तो उस टाइम पे मैंने कुछ लिखा था, आई एम गोना शेयर विद यू। बहुत दिन हो गए, द टाइटल ऑफ द पोएम इज बहुत दिन हो गए, बंद हम हो गए, खुली हवा में भी घुटन लगे, स्कूल बंद, ऑफिस बंद, बच्चों का खेल कूद बंद, आने जाने में भी लगा पाबंद। अब भी अगर नहीं समझे तो बताओ कब। If we're not gonna understand this thing now, then when we gonna understand the situation? When we gonna actually value the importance of our freedom, our relationships even? बहुत दिन हो गए, बंद हम हो गए। आज यही सोचती हूँ, हमारा बचपन अच्छा था, खेलने को खिलौने कम पर दोस्त बहुत थे, लड़ाई होने पर भी दिल सच्चा था, गली में खेले, पड़ोस में खेले, साथ में सबके हमने देखे मेले। कब बच्चों का ऐसा बचपन होगा, कब बच्चों का ऐसा बचपन होगा जब उन पर ना कोई बंधन होगा और बेखौफ उनका लड़कपन होगा। अब भी अगर नहीं समझे तो बताओ कब। खुली हवा क्या है, जाना है आज। I was literally feeling so claustrophobic during those times, and I was living in the apartment. और मुझे ऐसा लगता था कि बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं गार्डन नहीं देख पा रही हूँ। खुली हवा क्या है, जाना है आज। अपनों से मिलना क्या होता है, पहचाना है आज। क्या हम फिर वही जिंदगी जी पाएंगे? क्या हम फिर वही जिंदगी जी पाएंगे? शायद नहीं। अब भी अगर नहीं समझे तो बताओ कब कब। Those were the thoughts during lockdown time. मुश्किलों के साथ सफलता, रात के साथ दिन छिपा है, सच ही तो कहा है। अंधेरे के साथ उजाला, मुश्किलों के साथ सफलता, रात के साथ दिन छिपा है। हार के बाद जीत, आंधी के बाद स्थिरता, गम के साथ खुशी, उतार के साथ चढ़ाव छिपा है। हिम्मत न हार तू, तेरे हर पल में चमत्कार छिपा है। जलते रहना है तुझे, जीवन यही सिखाता है। पल में यहाँ समय बदले और इंसान कहीं खो जाता है। काश समय को मुट्ठी में भर लें, समय को थामे जीवन को जी लें, लेकिन बीता समय कब आता है? पास्ट इज पास्ट, यू वोंट गोना गेट इट बैक। बीता समय कब आता है, सच ही तो कहा है। चलो नई शुरुआत करें, आज में जिए, कल को भूलें। Just live in the present moment, and that's what I'm focusing currently. I'm just living in the present moment. हमेशा आज ही को तो हमने देखा है, कल तो बस एक धोखा है, उसे भी आज ही बनना है। जो आने वाला कल है वो कल आज होगा, उसे भी आज ही बनना है। आज ही सच है, इसे जीने में ही मजा है, सच ही तो कहा है। क्या मैंने लिखी थी when I was trying hard to get something for myself here and missing my childhood। तो इसका टाइटल है बचपन। बचपन आज फिर से याद आ रहा है बचपन, जब माँ की गोद में ही था सारा आंगन। खेल कर थक जाना ही था सबसे बड़ा काम, खेल कर थक जाना ही था सबसे बड़ा काम। भाई बहन से लड़ाई में जीतना भी नहीं था आसान। आई एम द यंगेस्ट वन इन माय 4 siblings and I know how I fight with them for everything। भाई बहन से लड़ना भी जीतना भी नहीं था आसान। दोस्तों का साथ ही था सबसे बड़ा खिलौना, दोस्तों का साथ ही था सबसे बड़ा खिलौना। झगड़ा हो जाने पर आता था बहुत रोना, झगड़ा हो जाने पर आता था बहुत रोना। एक कट्टी में झगड़ा और बट्टी में सुलह, कितनी सरल थी जिंदगी, क्यों हमने इसे भूला। पापा के ऑफिस से घर आने का होता था हर शाम इंतजार, क्योंकि पता था अब पापा ही पूरे करेंगे सारे चाव।
I really like, my mother was very strict, and I think in every parenthood, in every family, mother is always strict and the father is more lenient one, because in my case also I'm seeing I'm the most strict one and Ankit is like lenient. So my father was also like that. He never scolded us, and he was the one like we can just go with him and like we can tell, okay, I need this, and he just gonna fulfill everything. क्योंकि पता था पापा ही पूरे करेंगे सारे चाव। मम्मी की डांट से पापा ही बचाते थे, उनके टूर पर जाने से हम बहुत घबराते थे। अब भी याद आती है वो शाम जब ईरू के समोसे बहुत भाते थे। इन चंडीगढ़ where I used to live in sector 22, there was a guy who sells samosa, उसका नाम ईरू था, तो उसके समोसे बड़े फेमस थे। जब ईरू के समोसे बहुत भाते थे, मोबाइल से पहले भी थी दुनिया, मजे तो तब भी हम करते थे, याद किसी की आने पर तब मिल लिया हम करते थे। चोर पुलिस या छुपन छुपाई मजा बहुत ही आता था जब खेलते चूहा दौड़ बिल्ली आई। I don't know if you guys कहाँ गया वो भोला बचपन जब बड़ा होने का सपना था, कहाँ गया वो भोला बचपन जब बड़ा होने का सपना था। अब ख्वाहिश है फिर से बच्चा बनने की, Now we really want to be a kid again. अब ख्वाहिश है फिर से बच्चा बनने की, नहीं पता था बड़ा होने पर इसी कश्मकश में ही तड़पना था। Everyone, I'm Dr. Amrita Ranjan. I think most of you know me. Professionally, I'm a scientist come researcher. I'm working here in the university as a researcher. But today I'm not here professionally. I'm here with a very hidden hobby. Not exactly hobby, क्योंकि कविता मेरे साथ बचपन से रही है। जब मैं छोटी थी तो मैं कविता लिखती थी, डायरी में नोट करती थी। जब मैं टीन एज में आई तब तक मैं टेक फ्रेंडली हो चुकी थी, तो मैंने एक गूगल ब्लॉग खोला था अपना, और मैं उस पर अपनी सारी रचनाओं को लिखती थी। फिर मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट होती है बेसिकली। उसके साथ अपने आप को संभालने में और शुरू करने में, संवारने में मैं उस पार्ट को भूल गई, और कब गूगल ने वो ब्लॉग मेरा गायब कर दिया मुझे पता भी नहीं चला। आज मैंने बहुत कोशिश की लास्ट कुछ महीनों में कि उसको रिट्रीव कर पाऊँ, बट आई कुडंट। बट देन आई रियलाइज कि आज मैं जिस स्टेज पे खड़ी हूँ, आने वाले 10 सालों में मेरे बच्चे निकल जाएंगे अपनी अपनी पढ़ाई के लिए किसी और शहर में, और अब मुझे ज़रूरत है मेरी कविताओं की जो मुझे साथ दें। तो मैंने फिर से लिखना शुरू किया, और रिसेंटली मैंने अपने फेसबुक पे एक कविता भी डाली। कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ ने नहीं पढ़ी। और शुरुआत मैंने की मेरी पहचान से, जिसमें मैंने कोशिश की अपनी भावनाओं को और किस तरह मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ उससे सबको मिलाने की। कहा तो है मैंने मेरी पहचान, पर जब मैं खुद पढ़ती हूँ कविता तो मुझे लगता है ये शायद सबकी पहचान है, और इसको मैं जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं करना चाहती कि ये हर औरत की पहचान है। कहीं ना कहीं हर मर्द भी इससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको खुद से परिचित कराऊंगी, या आप सबसे परिचित कराऊंगी, विच इज़ मेरी पहचान। क्या है कि किस तरह मैं कभी बहुत सॉफ्ट हो जाती हूँ, कभी बहुत कठोर हो जाती हूँ, कभी ऐसा लगता है कि जो कर रही हूँ सब गलत ही हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, और कभी कभी रैंडमली कुछ कर जाती हूँ और वो एकदम सटीक हो जाता है, तो लगता है अरे वाह मैं तो बड़ी मास्टर हूँ, मैं सब सही कर सकती हूँ। कभी कभी लगता है कि सब कुछ बहुत उलझ गया है, नहीं सुलझेगा कुछ, और फिर लगता है लाइफ तो बड़ी कूल चल रही है, क्या चाहिए। एंड ऐसी लाइफ सबकी होती है मुझे लगता है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। I'm sorry, I just overheard that you feel Hindi sounds good, and unfortunately I'm not sounding good today. So I really apologize. So कविता कुछ इस प्रकार है। उड़ता हुआ आंचल कभी, सिमटा हुआ बादल कभी, कभी नदिया सी चंचल हूँ, कभी गहरा समंदर हूँ, अद्भुत अंतरिम शक्ति कभी, हूँ अंतर मन की व्यक्ति कभी, अपनी सोच को छुपाए कभी,
बिना बात ही बड़बड़ाए कभी, लगती कभी हूँ शोर सी, लगती कभी हूँ शोर सी, दिलों को बांधी एक डोर सी, लगती कभी हूँ शोर सी, दिलों को बांधी एक डोर सी, कभी सन्नाटों को हूँ चीरती, कभी सन्नाटों को हूँ चीरती, निर्भीक और अधीर सी, कभी शांत सहज पहाड़ सी, कभी सिंह की दहाड़ सी। आई फील मेरे बच्चे इससे रिलेट करेंगे। कभी शांत सहज पहाड़ सी, कभी सिंह की दहाड़ सी, एक चाल हूँ कभी मौन सी, एक चाल हूँ कभी मौन सी, गदाबेरिया की धूल सी। गदाबेरिया वो शाम का समय होता है जब चरवाहे सारे अपने जानवरों को लेके जा रहे होते हैं और बड़ा शांत सा सुकून वाला समय होता है। तो एक चाल हूँ कभी मौन सी, गदाबेरिया की धूल सी, कभी धूप हूँ कभी छाँव हूँ, कभी धूप हूँ कभी छाँव हूँ, दिशाहीन सी कभी नाव हूँ, कभी प्रेरणा का प्रतीक हूँ, हर निर्णय में कभी सटीक हूँ। पता नहीं कैसे हो जाता है पर होता है कि कभी प्रेरणा का प्रतीक हूँ, हर निर्णय में कभी सटीक हूँ, गलत और सही के परे हूँ मैं, गलत और सही के परे हूँ मैं, वृक्ष का फूल ही नहीं जड़े हूँ मैं आदि हूँ मैं अंत हूँ, मैं आदि हूँ मैं अंत हूँ और भावनाओं सी अनंत हूँ। मैं जड़ता नहीं, मैं जड़ता नहीं, मैं जीव हूँ, हर भूल से सीखी हुई एक जीत हूँ। हर भूल से हम कुछ ना कुछ लेसन लेते हैं, उसके लिए लिखा है कि हर भूल से सीखी हुई एक जीत हूँ, जीवन का मैं ही सार हूँ, जीवन का मैं ही सार हूँ, खुशियाँ मैं अपार हूँ। मैं रीत हूँ, मैं प्रीत हूँ, कभी हवाओं के विपरीत हूँ, विष हूँ अगर, कई बार होता है हम लोग बड़े ही विष जैसे साउंड करते हैं पर ये सबके साथ होता है। तो विष हूँ अगर तो अमृत भी हूँ, विष हूँ अगर तो अमृत भी हूँ, कभी रुकी हुई तो कभी अग्रिम भी हूँ। हम लोग अच्छे ही हो जाएंगे तो भगवान नहीं हो जाएंगे। बुराई तो होती है सब में और बुराई भी है, something good then we will be God, right? We have everything good and bad. और एक कविता और है मेरी, पर मैं चाहूंगी पहले कोई और सुना फिर मैं बाद में। मेरा नाम मोनिका राव है, मैं गुड़गांव से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन BCA किया है, तो उसके बाद मास्टर्स किया MCA, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही जॉब स्टार्ट कर दिया था। मास्टर्स मैंने जॉब के साथ ही किया था, तो मैं भी हमेशा बिजी रहने वाली लड़की रही। फिर उसके बाद हम मेरे हस्बैंड तो विदेश मंत्रालय में है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो हम लोगों की जो जॉब होती है वो पोस्टिंग वाली होती है। हर 3 साल की पोस्टिंग है, हर 3 साल बाद हमें अपनी जगह चेंज करनी होती है, अपना देश, सब चीज़ें बदलनी होती है। तो उसमें कुछ खूबियाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटियाँ हैं। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, रोटी 1 मांगती हूँ वो 2 लाकर देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही होती है माँ। इसलिए कहते हैं कि माँ के दिल को कभी दुखाना नहीं चाहिए। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है उस माँ को, उनके चेहरे पे ना कभी थकावट देखी, ना ममता में मिलावट देखी। आज फिर गुजरा जमाना याद आता है, मुझे घर का खाना याद आता है। दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है, वो प्यार से माँ का खिलाना याद आता है। मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है, अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है माँ।
वो डांट कर खिलाना याद आता है माँ। मेरे वास्ते तेरा पैसे बचाना याद आता है। थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। कहीं हो ना जाए घर की मुसीबतें मुझको मालूम, छुपा कर तकलीफें तेरा मुस्कुराना याद आता है माँ, तेरा मुस्कुराना याद आता है। जब आए थे तुझे छोड़कर हम विदेश मेरी माँ, मुझे वो तेरा आंसू बहाना याद आता है, मुझे वो तेरा आंसू बहाना याद आता है। तेरे डिब्बे की तो रोटियां कहीं बिकती नहीं, महंगे होटलों में भूख आज भी मिटती नहीं। भरे हुए घर में तेरी आहट मिलती नहीं माँ, तेरी बाहों की नरमात कहीं मिलती नहीं। मैं तन पर लादे फिरती हूँ दुशाला रेशमी माँ, पर तेरी बाहों की गर्मराहट कहीं मिलती नहीं। दुनिया में एक माँ ही ऐसी है जो 365 दिन काम करती है बिना छुट्टी लिए, बिना मजा लिए। अब तो मुझे भी चीज समझ आती है। मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ। फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया क्या कहती है। घुटनों पर रेंगते रेंगते जाने कब बड़ी हुई, कब बड़ी हुई तेरी ममता की छाव में, जाने कब बड़ी हुई। काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है। काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है। मैं ही मैं हूँ हर जगह, माँ प्यार भी तेरा कैसा है। सीधी सादी भोली भाली, मैं ही सबसे अच्छी हूँ। सीधी सादी भोली भाली, मैं ही सबसे अच्छी हूँ। कितनी भी हो जाऊं बड़ी माँ, मैं आज भी तेरी पे बड़ी। एक माँ की इज्जत दुगनी हो जाती है जब एक औरत खुद माँ बन जाती है। इसी बहाने हम सबने अपनी माँ को याद किया। और अभी मेरी बेटी हुई तब मेरी माँ 2 महीने के लिए मेरे पास रुकने आई थी। तो ये सब चीजें मैं बहुत रिलेट कर पाई। और सच में तीनों टाइम मुझे, मेरी शादी को 11 साल हो गए, 11 साल के बाद मुझे तीनों टाइम मेरी माँ के हाथ का खाना मिला। वो सच में वो एक मील मेरे लिए ऐसा था कि मैं अमृत खा रही हूँ। और उस मेरे को जो चीज़ें मेरी मम्मी की बुरी लगती थी, मैं कहती थी अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो, पहले ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते हो, सबका वेट क्यों करते हो। वही नेगेटिव चीज़ें या कहो वही सब चीज़ें मेरे में आ रही है। मैं अपने बच्चों को फ्रूट काट के देती हूँ, खुद नहीं खाती। इवन मेरी बेटी बोलती है मम्मा सारा दिन हमें खिलाते हो, आप क्यों नहीं खाते? सेम मेरा रखा रहता है डेस्क पे और वो शाम हो जाती है, मैं खा नहीं पाती। ये नहीं कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ पता नहीं कहाँ पे वो टाइम जाता है और वही ले रही हूँ अपने लिए नहीं। वो बात सुनती रही, मैं फिर उसी गृहस्थी में व्यस्त रही। मैं वो बात सोचती रही, वो बात सुन के सोचती रही, मैं फिर उसी गृहस्थी में व्यस्त रही। तो आप सारा परेशानी अपनी माँ को बता दे रही है। जब हम माँ की बात कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी माँ की छवि को याद ना करूँ, अपनी माँ को याद ना करूँ। माय मॉम पास्ड अवे इन 2014। और ये कविता अभी जब मोनिका जी एक माँ के ऊपर कविता बोली, भावना बोली, मैंने वहाँ खड़े खड़े लिखी है। क्या माँ सी हस्ती है मेरी जो मिटेगी नहीं, माँ सी हस्ती है मेरी जो मिटेगी नहीं। एक माँ ही है जो खड़ी है तन के सीना, एक माँ ही है जो खड़ी है तन के सीना, एक माँ ही है जो खड़ी है बन के साया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बचपन से सिखाया गया है कि सॉरोज आए, कुछ ग्रीफ आए, फिर भी आगे बढ़ो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में चलते रहो। You should keep moving on in life, no matter what griefs or sorrows you face. Very small poem just on my smile because I love people no matter what. यूँ मुस्कुराते तो हम खूब हैं, यूँ मुस्कुराते तो हम खूब हैं, हस्ती हमारी हंसी से हसीन है, हस्ती हमारी हंसी से हसीन है। यूँ गम भी बहुत छुपा लेते हैं हम, यूँ गम भी बहुत छुपा लेते हैं हम, हंसी हमारी गमों पर पर्दा कर लेती है।
ये हंसी ही है जो हमसे रूबरू होकर हमारी हस्ती को हसीन बना देती है। When I write, I am too inspired by nature. I love the skies, the trees, just be in nature, and that's what my inspiration is. So this is something that I've written about life. ना जाने क्यों होता है ये ज़िंदगी के साथ, क्यों ना जाने आज ये आसमान अपने बस में नहीं, क्यों ना जाने आज ये हम सफ़र अपना नहीं। ना कोई फासले थे ना कोई हौसले थे, बुलंद थी वो हर कश्ती जिसमें हम सवार थे। ना कोई मुकाम था ना कोई मंजिल थी, फिर भी हर वो रास्ता अनजाना था। क्यों ना जाने आज ये आसमान अपना नहीं, क्यों ना जाने आज ये हम सफ़र अपना नहीं। ना जाने क्यों होता है ये ज़िंदगी के साथ, बादल बदलते हैं रंग और आसमान रुख बदलता है। ना जाने क्यों होता है ये ज़िंदगी के साथ, टूटते जाते हैं सपनों के वो महल वो अरमान। क्यों ना जाने आज ये आसमान अपना नहीं, क्यों ना जाने आज ये हम सफ़र अपना नहीं। ना जाने कहाँ गए वो दिन वो पल, बिखरे बिखरे से आज सब पड़े हैं इधर उधर। ढूंढे चिराग लेके मन खुशी, बस हाथ लगी तो मायूसी। ना जाने क्यों होता है ये ज़िंदगी के साथ, ना कोई हम सफ़र रहता है ना कोई राजदान। One of my last poems that I just want to this is inspired by my friendship with my childhood friend. We share close to 35 years of friendship, and this I wrote when I was literally very angry with her. And होता है कि बचपन में जब सहेलियाँ बनती हैं तो हम सब एक परिवार की तरह हो जाते हैं। मैं 5.5 साल की थी, वो 6.5 साल की थी, तब से हमारी दोस्ती है। उतार चढ़ाव आए, कंट्रीज बदल ली, फिर वापस एक साथ हो गए, फिर बातचीत हुई, फिर झगड़े हुए, फिर अलग हो गए। अभी अलग ही है, बट ये कविता उसके लिए है। बचपन की सहेलियाँ जब पहेलियाँ बन जाती हैं, बचपन की सहेलियाँ जब पहेलियाँ बन जाती हैं, मासूम सी उस दोस्ती को जब नापने और तोलने लगती हैं। मेरे तेरे में और हम में अंतर जब भूल जाती है, वो बचपन की छुपन छुपाई जब सच सी लगने लगती है। बचपन की सहेलियाँ जब पहेलियाँ बन जाती हैं। थैंक यू। I'm reciting one Punjabi poem from Shiv Kumar Batalvi. So he's an Indian poet, writer, playwright of the Punjabi language, and he was most known for his romantic poetry, noted for his highlighted passion, pathos, separation, and lover's agony. And he was also called Birah da Sultan. Birah means in Punjabi separation, and the Sultan is king. So whatever he was writing, he's writing about the separation, about the lovers. He was born in 23rd July 1936. In that time, now it's in Pakistan, but that time it was in India, Punjab province. And he died on 6th May 1973. तो शिव कुमार बटालवी, जैसे मैं बता रही थी आपको, ही ऑल्सो अवॉर्डेड विद पद्म भूषण एंड साहित्य अकादमी अवार्ड। तो मैंने इनको पढ़ना शुरू किया था जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी। उससे पहले इतना हाई लेवल पे कभी नहीं पढ़ा था। तो ये अभी मैंने बुक भी मंगवाई, इनफैक्ट शिव कुमार जी की समूची कविता। तो ये सारा उनका जितने भी उन्होंने लिखे हैं, सब नॉवल, सब उनकी पोएम्स इसमें है। So the title, it's in Punjabi, but I'm gonna let you know and recite it in English also, what's the meaning in English. So the title of the poem is Panchi Ho Jawa. So I want to be a bird, or I wish I can be a bird again. जी चाहे पंछी हो जावा, उड़दा जावा, गाँदा जावा, अंशु सिखरा नू छूट पावा, इस दुनिया दिया रावा भुल के, फेर कदी वापस ना आवा। जी चाहे पंछी हो जावा, जा अस्नान करा विच यम यम, ला टिक्का पिया डाक दा पानी, मान सरोवर दे पै कंडे, टुट्टा जिया एक गीत में गावा। जी चाहे पंछी हो जावा, जा बैठा विच खिड़कियां खिड़ियां रोया, फक्का पैना इत्र सजोइया, ए टिसियां मोइया मोइया,
युगा युगा तो कक्कर होइया, कुट कलेजे मैं गरमावा, जी चाहे पंछी हो जावा। एक दिन ऐसा चक्कड़ चूल्हे, उड़ पुड़ जावन सब्बे तिल्ले, बेगर बेदर मैं हो जावा, सारी उम्र पिया रस गमदा, ए नशे विच जिंद हड़ावा, जी चाहे पंछी हो जावा। So the English meaning is, I want to be a bird, I want to fly, I want to sing, to touch the lofty mountains, to forget the ways of the world, never to return, to bathe in holy water, to drink the water of offerings, to sit near the Mansarovar. Mansarovar is a lake and it's like one of our pilgrimage also. To sit near the Mansarovar, to sing a broken song, to sit in the floral form, to inhale the perfumed air, so just to be in the nature, to warm the mountain peaks that have been frozen for ages, to warm them with my embrace. I want to be a bird again. I want to be a bird. Thank you. मेरा एक कविता है, थैंक यू सो मच। मेरा एक कविता है जो सावन पर है और सावन आने वाला है, तो हम चाहते हैं या केप टाउन का सावन, केप टाउन का सावन। हम लोग को मजा आ रहा है ना सबको, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक्चुअली देर से करके वो चुपचाप सुन रहे हैं। कैसा होता था हमारा सावन का महीना बचपन में, मोहल्ले में भरा रहता था पानी, छपाक छपाक करने की थी कहानी, मछलियों को पकड़ते थे, पेड़ से अमरूद तोड़ते थे और कुछ इस तरह सावन गुजारा करते थे। फिर आया किशोरावस्था, बारिश की बूंदों ने करवट बदला, बूंदें तो वही थी बस लगती अब नहीं थी, हथेलियों से उन बूंदों को उड़ाना, अपनी छत पर बारिश में भीगना, धीमे धीमे कुछ गुनगुनाते रहना। कुछ इस तरह गुजरा वो सावन का महीना। अब नई शादी हुई है। नई शादी के बाद सावन ने जगाई और भी एहसास, हथेली में सजाई साजन की मेहंदी, हरी हरी चूड़ियां हाथ में पहन ली, खुशियों से अपनी दुनिया भर ली। सबके समक्ष है। आज जिस स्टेज पे पहुंच गई हूँ लाइफ के, एक चीज़ सीखी है कि अभी तक जिंदगी में हमेशा एक होड़ लगी रही कि घर खरीद लें तो चैन मिलेगा, एक गाड़ी खरीद लें तो सुकून मिलेगा, फिर लगा नहीं इससे बड़ा घर होना चाहिए, इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बच्चे बेस्ट स्कूल में जाने चाहिए, और हर अपनी ऐसी इच्छाओं में हमने सुकून ढूंढा। पर फैक्ट है इन सब चीज़ों में आज तक सुकून मिला नहीं और ये कभी खत्म भी नहीं होने वाला है। तो कल यूं ही बैठी थी मैं और मैंने सोचा, तो मैंने ये कविता सुकून पे लिखी है। जिसको ढूंढा महफिलों में उसे खामोशियों में पाया, जिसको ढूंढा महफिलों में उसे खामोशियों में पाया, तलाशा जिसे अक्सर महलों में उसे गांव की गलियों में पाया। ऊंची इमारतों से दूर किसी नदिया के किनारे, ऊंची इमारतों से दूर किसी नदिया के किनारे, ना कोई प्रेयसी ना कोई होर, पर जब अंतर मन पुकारे। किसी वृक्ष की छांव में करवटें लेते हुए, किसी वृक्ष की छांव में करवटें लेते हुए, उंगलियों को यूं ही मिट्टी में शून्य मन से फेरते हुए, एक कंकड़ यूं ही पानी में दौड़ाते हुए, एक कंकड़ यूं ही पानी में दौड़ाते हुए, अंततः गुड़ुक कर धूमिल हो जाते हुए, पानी के बुलबुलों को मचलते हुए देखना, पानी के बुलबुलों को
मचलते हुए देखना, फिर उसकी तरंगों की चादरों को समेटना। खिली खिली सी धूप में, खिली खिली सी धूप में चारपाई पर लेटकर, खिली खिली सी धूप में चारपाई पे लेटकर, गेरू चूना की अल्पना में सारे रंगों को समेटकर, गेरू चूना की अल्पना में, जिसमें 2 ही रंग होते हैं, एक मैरून और एक वाइट, पर उसकी खूबसूरती इतनी अच्छी लगती है कि किसी कलरफुल से भी कम है। तो बेसिकली हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें वो खुशी उन 2 रंगों से भी मिल रही है। थोड़ा है, थोड़े की हाँ, तो गेरू चूना की अल्पना में सारे रंगों को समेटकर, कभी धीमी लोकगीतों की वाड़ी में, कभी धीमी लोकगीतों की वाड़ी में, कभी नानी की कहानी में, कभी रसोई में छुपी मिठाई में, कभी रसोई में छुपी मिठाई में, तो कभी दादी की बुनाई में, कभी माँ की एक पुकार में, कभी माँ की एक पुकार में, कभी पिता के दुलार में। जो पाया है वो मासूम है, जो भी पाया है वो मासूम है, पर यही मेरे जीवन का सच्चा सुकून है। बड़े गौर से सुनते हैं, बोलती है ना, हमारे घर के लोग भी बोलते तो हम सुनते हैं। तो गुजरे हुए जमाने की बातें बड़ी गौर से सुनते हैं, उन सारी बातों को बड़ा मोल भी हम देते हैं, उन सारी बातों को बड़ा मोल भी हम देते हैं। ये जमाना भी एक दिन बीत जाएगा, ये जमाना भी एक दिन बीत जाएगा, हमारे बाद कोई और आएगा, हमारे बाद कोई और आएगा। चलो उनके लिए इस वक्त को हम सींचते हैं, चलो उनके लिए इस वक्त को हम सींचते हैं। इस जमाने में क्या है अच्छा, उस पर हम गौर करते हैं, इस जमाने में क्या है अच्छा, उस पर हम गौर करते हैं। बुराइयां तो हर जगह मिल जाएंगी, बुराइयां तो हर जगह मिल जाएंगी, अच्छी चीजें दबी छुपी पड़ी हैं कहीं, ढूंढने से नजर आएंगी। तो आओ इन अच्छाइयों से हो जाते हैं आज रूबरू, तो आओ इन अच्छाइयों से हो जाते हैं हम आज रूबरू। फिर तो बस ये पल भी कोई और कहानियों में दोहराएगा, अगले पल की क्यों है हमें इतनी चिंता, इस पल का मोल क्या है, चलो इस पल में करते हैं पता। बेदा शुरू, इनके पास एक अलग टैलेंट है, ये पूरा गाना विसल में गा देती है, ये तो आप सुन सकते हैं उनसे। हेलो एवरीवन, प्रदीप, मैं इनके साथ ही अभी रहती हूँ, मतलब इनके वर्क पर्पज से यहाँ आए थे, फिर मैंने इनको ज्वाइन किया था, तभी से हूँ। तो इस जो टैलेंट है, हाँ देखो सभी का अलग अलग टैलेंट रहता है, कोई बोल सकता है, कोई लिख सकता है, कोई पेंटिंग वेंटिंग कर सकता है, कोई गाना गा सकता है, नाच सकता है। तो मेरे में वैसे कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो टैलेंट है ना, ये मैंने मेरे पापा से लिया हुआ है, मतलब वो मुझे सिखाए नहीं है, लेकिन देखते देखते सुनते सुनते प्रैक्टिस करते करते ऑब्जर्व करते करते हो गया है वो। हालांकि वो बहुत ज़्यादा, मतलब रेंज उनका बहुत ज़्यादा है, मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। तो एक गाना है, बैठ जाओ रिलैक्स होके बैठ, खड़े होके, ये शाम मस्तानी। वाह वाह क्या बात।
or anywhere in India. So guys, one thing is there, me as a passionate for my work or anything I do, if you are passionate about your like writing poems and all, don't stop it. No matter whatever you get, you have challenges. You see these ladies, beautiful ladies who have given their beautiful talent, I can showcase their talent. Inspiration for all the ladies. Don't leave your passion. Keep continuing. You will achieve your goals. Okay. Thank you very much, भावना जी. थैंक यू देविदा आने के लिए और इतना अच्छा से सब कुछ करने के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत 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 अच्छा लगा आपके साथ. बहुत फ्रेंडली लगा. बहुत अच्छा लगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब रोमिंग देवी. बहुत अच्छा चैनल है. और जितने भी मेरे भारत के व्यूअर्स हैं जो भी द इनसाइड पोइट्री पेज देखते हैं और उसको लाइक किए हुए हैं, वो सब जाके रोमिंग देवी जाके देख सकते हैं. आप लोग केप टाउन का बहुत सारा ब्यूटीफुल व्यू, सीनरी सब आपको देखने मिलेगा. और एक जो रियल केप टाउन है वो देखने मिलेगा. बहुत सुंदर केप टाउन है वो. रोमिंग देवी के कैमरा से आपको देखने मिलेगा. सो प्लीज सब्सक्राइब रोमिंग देवी ऑन यूट्यूब. और आप लोग जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं द इनसाइड पेज पर, प्लीज थैंक यू सो मच. जाकर के आप लोग लाइव मैं शेयर कर चुकी हूँ, जाके आप लोग देख सकते हो. थैंक यू सो मच. Thank you very much. Thank you. Stay tuned. See you in my next video. Bye bye.